Good morning, student. Today we are going to start chapter number 2 and part number 2. We have already discussed this chapter in part number 1. If you have not seen that video, you can see the video, and after seeing the first part, you can see the second part of this chapter. The chapter name is Lost Spring, and the writer of this chapter is Anish Jung, as you know. I have already told you about Anish Jung. In the previous video, we have discussed about a little while whose name Sahib-e-Alam. Sahib-e-Alam means the king of the universe. Sahib-e-Alam, Alam means universe, and Sahib, as you know, king and Sahib. But Sahib-e-Alam was a rag picker. He came from Bangladesh during many years ago. The remaining portion we will continue in this chapter. Let's start the video. First of all, I would like to say that you will open your book Flamingo and chapter number 2. My acquaintance with the barefoot rag pickers, paragraph number 3 or 4. My acquaintance with the barefoot rag picker leads me to the Seema Puri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Those who live here are the squatters who came from the Bangladesh back in 1971. Sahib family is among them. Seema Puri was then a wilderness. It is still, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of the sewage drainage or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on the voters list and enable them to buy grains. Food is more important for the survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to the bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grains, say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Whenever they find food, they pitch their tents that become tent homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Seema Puri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child, it is even more. I sometimes find a rupee, even a 10 rupees note, Sahib says. And his eyes lightening up when you can find a silver coin in a heap of garbage you don't stop surrounding, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents.
For the children, it is wrapped in wonder. For the elder, it is means of survival. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch is standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes that look stranger over his discolored shirts and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are the discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole in a dream come true. But the game is watching so intensely is out of his reach. Let's explain the reading portion of today. Sahib, my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. My acquaintance in the barefoot रैग पिकर, मेरी जो पहचान है, साहिब कह रहा है, साहिब आलम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी जो पहचान है कूड़ा बीनने वालों में मेरी पहचान है। सीमापुरी जो इलाका है, माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरी पहचान सीमापुरी में क्या है, कूड़ा बीनने वालों में। यानी सीमापुरी जो इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे कूड़ा बीनने वाले लोग ही रहते हैं। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो दिल्ली के स्कर्ट यानी कि किनारे पर बसा हुआ है, पेरीफेरी बिल्कुल किनारे बसा हुआ है, सटा हुआ है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी वहाँ से दिल्ली जाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, और जो लोग यहाँ रहते हैं वो यहाँ के नहीं हैं बल्कि वो लोग बांग्लादेश से आए थे बैक इन 1971, और कब आए थे, 1971 में आए थे। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स फ्रॉम केम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग 1971 के समय पर बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे। साहिब फैमिली इज़ अमंग देम, और साहिब का परिवार भी उन लोगों में से एक है। यानी बहुत सारी फैमिली 1971 में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, देयर आर टू पाकिस्तान, व्हेन द डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान देयर आर टू पाकिस्तान, बट आफ्टर 1971 ओनली देयर इज़ one Pakistan and one Bangladesh emerged at that time. There are many persons who came to India at that time. Simapuri was then a wilderness. तो जब वो लोग यहाँ आए थे तो सीमापुरी कैसा स्थान था, एक विल्डरनेस यानी कि एक जंगली, एक सुनसान, एक वीरान स्थान था। इट स्टिल थोड़ा बहुत अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ज़्यादा खाली नहीं रहता है, सब कुछ भरा हुआ है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। वहाँ पर घर बने हुए हैं, लोगों की छतों पर टिन डले हुए हैं, कबाड़ डला हुआ है, बहुत सारी गलियों में मिट्टी डली हुई है, मड है, कीचड़ है, लगभग पानी है, लगभग 10,000 रैग पिकर, 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वो लोग यहाँ पर बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी चीज़ के पहचान के लगभग 30 सालों से रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स
बिना परमिशन के विथ राशन कार्ड्स। लेकिन उनके पास राशन कार्ड तो है, इतने सालों से वो रह रहे हैं, तो राशन कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड है उनके पास, राशन कार्ड बनवा रखा है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर। तो राशन कार्ड से वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, वो लोग वोट भी देते हैं। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, उसकी वजह से वो लोग जो है अनाज भी खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, एज यू नो, एज यू everyone know that food is most important thing to eat and survival, कि खाना ही जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, पहचान से ज़्यादा खाना ज़रूरी है। पहचान जब बनेगी तो बन जाएगी, लेकिन उससे पहले खाना आवश्यक है। If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, हम लोग दिन भर जो है अपना काम करते हैं और अपने भोजन को खाते हैं और बिना किसी पेट दर्द के, यानी अपने पेट को खाली नहीं रखते हैं। कह रहा है इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिली, और यदि दिल ढलने पर, दिन के समाप्त होने पर, वी कैन फीड अवर फैमिली, हम लोग अपने घर वालों को अगर खाना दे सकें विदाउट एकिंग स्टमक, बिना किसी पेट दर्द के, यानी उनका घर में जो वो खाना देंगे, यानी दिन भर कूड़ा पीने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे उससे वो जो खाना खाएंगे तो रात में चैन की नींद सो सकेंगे और उनके पेट में दर्द भी नहीं होगा। वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग को खेतों के मुकाबले यहाँ रहना पसंद है, क्योंकि हम लोग को उसके बदले में कुछ पैसा मिलता है और उससे हम कुछ खरीद सकते हैं। See a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river. जब हमने कुछ औरतों से, कुछ महिलाओं से ये पूछा कि तुमने अपने हरे हरे खेतों को, प्यारी प्यारी नदियों को क्यों छोड़ के तुम लोग यहाँ आ गए, तो उन्होंने कहा कि अनाज से बेहतर है कि जीवन जीना, जीवित रहना और अपने पेट को भरना खेतों से अच्छा हम लोग यहाँ पर अपने जीवन को बिता रहे हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और पिछले कुछ वर्षों में ये कला का एक अद्भुत स्थान बन चुका है। गार्बेज टू देम इज़ अ गोल्ड, और उन बच्चों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए जो यहाँ जीवन जी रहे हैं, गार्बेज यानी कूड़ा ही गोल्ड है, यानी सोना है। गार्बेज इज़ गोल्ड, उनके लिए कूड़ा ही सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनके जीवन का रोज़ का खाना है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, यही उनके सर की छत है। इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही टूटी हुई छत हो, फटी हुई छत हो, लीक कर रही हो, लेकिन कूड़ा ही घर है, कूड़ा ही उनका रोज़ी रोटी है, कूड़ा ही छत है, कूड़ा ही सोना है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए, मेरे बच्चों के लिए ये उससे भी ज़्यादा है। ये वहाँ की औरतों का, वहाँ की वीमेन का कहना था। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, साहिब आलम कहता है कि कई बार आई समटाइम फाइंड अ रुपी, उस टाइम की बात हो रही है, इवन अ 10 रुपी नोट, कई बार 10 का नोट भी कह रहे हैं मुझे मिल जाता है, 1 रुपये का नोट भी मिल जाता है, 10 का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज हिज आइज लाइटनिंग अप, ये कहकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि मुझे कई बार 10 रुपये भी मिल जाते हैं। आज के टाइम के 10 रुपये नहीं, 20-25 साल पहले के 10 रुपये, 10 रुपये भी मिल जाते हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, और कह रहे हैं जब आप उस कूड़े के ढेर में कभी कभार एक चांदी का सिक्का आपको मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आप इस उम्मीद में और कूड़ा बीनोगे कि आपको सोना मिल जाए, आपको चांदी और मिल जाए, कुछ पैसे और मिल जाए। कई बार कह रहा है मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कई बार मुझे जो है 10 का नोट भी मिल जाता है, और कई बार मुझे चांदी का सिक्का मिल जाता है। सिक्का मिलने के बाद आपके अंदर एक उम्मीद जग जाती है कि शायद आपको और कुछ इससे बेहतर और ज़्यादा मिल सके। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए
कूड़ा बीनना एक अलग मतलब रखता है और माता पिता के लिए कुछ अलग स्टैंडर्ड रखता होगा, उनके लिए वो जीविका है। लेकिन बच्चों के लिए जो रैग पिकर चाइल्ड है, बच्चों के लिए कूड़ा बीनने वाले जो चाइल्ड हैं उनके लिए ये एक अलग वैल्यू रखता है। रैग पिकिंग का ये प्रोफेशन है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए तो एक रहस्यमय है, एक आश्चर्य, एक गिफ्ट है कि पता नहीं आपको क्या मिल जाए। इस तरह से उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि लाओ इसमें ढूंढा जाए। रैग पिकिंग में बहुत कुछ ना कुछ मिलता रहता है गिफ्ट रूप में। तो दैट इज़ अ वंडर फॉर दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन। फॉर द एल्डर इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बड़ों के लिए तो ये जीवन जीने का एक तरीका है, बड़ों के लिए जीवन गुजारने की एक रोजी रोटी है एक। लेकिन बच्चों के लिए दैट इज़ अ full of wonder that they will get something new gift like rupee, 10 rupee note, like silver coin also. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. एक दिन की बात है, वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंडी का यानी कि शीत ऋतु की मॉर्निंग यानी सुबह की बात हो रही है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड। मैंने देखा साहिब आलम को एक फेंस्ड यानी कि दीवार के किनारे खड़े हुए हैं। फेंस्ड स्टैंडिंग फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। पास का या पड़ोस का जो क्लब है उसकी फेंस पर, उसकी दीवार पर वो खड़े हुए हैं। वॉचिंग टू मैन ड्रेस्ड इन वाइट। और देख रहे हैं, एक क्लब की दीवार के पास खड़े हुए हैं, दो व्यक्ति को देख रहे हैं जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेस इन वाइट, प्लेइंग टेनिस। और वो लोग क्या खेल रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को टेनिस खेलते हुए, जैसे आपने सानिया मिर्ज़ा को देखा होगा, महेश भूपति को देखा होगा, लिएंडर पेस को देखा होगा, आपने मारिया शारापोवा को देखा होगा, नोवाक जोकोविच को देखा होगा, आपने रोजर फेडरर को देखा होगा। ये दैट इज़ सेरेना विलियम्स सिस्टर, दैट इज़ अ प्लेयर्स ऑफ टेनिस स्पोर्ट्स। तो वहाँ पर दो लोग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। उस दीवार के पीछे से खड़े होकर वो मन ही मन कहता है मुझे ये गेम बड़ा पसंद है, मुझे ये खेल अच्छा लगता है। आई गो इनसाइड वैन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिस्ट। उसने कहा कि मैं अंदर जाऊंगा, जब कोई नहीं होगा तो मैं अंदर जाऊंगा और मैं इस खेल को खेलूंगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। हो सकता है गेट कीपर मुझे ये यूज़ करने दे, अंदर जाने दे और मैं अंदर चला जाऊँ। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब भी टेनिस के शूज़ पहने हुए था, लेकिन उसके ये टेनिस के जो शूज़ थे, वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज, अलग दिखाई दे रहे थे, भिन्न, डिफरेंट कलर के, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, क्योंकि वो रैग पिकर था, कूड़ा बीनने वाला था, और उसके पैर में जो शूज़ थे वो डिफरेंट कलर लग रहे थे, क्योंकि वो जो कपड़े पहने था, शॉर्ट्स एंड शर्ट्स, दीज पेयर इज़ वेरी डिफरेंट and very off color and old and rough। उसके जो कपड़े थे वो पुराने, फटे चित्ते, और वो जूते पहने हुए टेनिस के। someone gave them to me। उसने कहा कि मुझे किसी ने ये जूते दिए थे। he says in his manners of an explanation, someone gave them to me। उसने बताया कि किसी ने मुझे ये जूते दिए थे। वो जो जूते पहने हुए था टेनिस वाले, साहिब वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर द डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। वो जो जूते पहने हुए था और वो जो मैच नहीं कर रहे थे उसके शर्ट एंड शॉर्ट्स में शूज़। उसने बताया समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, इस बात को बताने के लिए कि मुझे किसी ने ये शूज़ दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। तो उसने एक्सप्लेन करते हुए ये बताया कि ये जो शूज़ हैं, डिस्कार्टेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, एक अमीर लड़के के जूते हैं, ये मेरे जूते नहीं है, मेरे शूज़ नहीं हैं। Who perhaps refused to wear, लेकिन उस लड़के ने ये शूज़ पहनने से मना कर दिया था, इसलिए them because of a hole on of them,
क्योंकि इन जूतों पर छेद हो गया था। जब इन जूतों पर छेद हो गया था तो उस अमीर लड़के ने इन जूतों को पहनने से मना कर दिया, डज नॉट बॉदर हिम, और वो इन जूतों को और अधिक अब पहनना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इसे पहन रहा हूँ। यानी ये एक्सप्लेन कर दिया साहिब ने कि मैं इन जूतों को इसलिए पहना हूँ, ये मेरे जूते नहीं हैं, मेरी अगर शर्ट से और शॉर्ट से ये मैच नहीं कर रहे तो ये मेरे शूज़ नहीं है, ये किसी और के हैं, किसी रिच बॉय के हैं, उस पर छोटा सा एक होल हो गया तो उसने ये शूज़ मुझे दे दिए और मैं पहने हुए हूँ। फॉर वन हु हैव वॉक्ड बेयरफुट, कोई ऐसा व्यक्ति जो नंगे पांव घूमता हो, बिना चप्पल और जूते को घूमता हो, उसके पास ना चप्पल हो ना जूता हो, इवन शूज़ विद अ होल इन अ ड्रीम कम ट्रू, तो उसके पास जूते होना एक सपने का पूरा होना है। जो नंगे पांव घूमता हो, भले ही वो शूज़ फटे हों, ये भले ही वो शूज़ में होल हो, लेकिन किसी नंगे पांव चलने वाले व्यक्ति के पास शूज़ होना उसके सपने का सच होने के बराबर है। यही हाल था साहिब आलम का। उसको ये लगता था कि उसका जो सपना था शूज़ पहनने का वो सच हो गया है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंसिटी इज़ आउट ऑफ रीच, लेकिन जिस गेम को वो देख रहा था, टेनिस को, जिसको वो बहुत देर से वॉच कर रहा था कि मैं काश मुझे खेलने को मिल जाए, मुझे ये गेम बहुत पसंद है, मैं इसे पसंद करता हूँ, जब ये लोग चले जाएंगे तो मैं अंदर जाके उस जो प्यून है उससे कहकर मैं अंदर चला जाऊँगा, मैं भी थोड़ा स्विंग करूँगा, हाथ पैरों को चलाऊँगा और मैं इस गेम को खेलूँगा। लेकिन ये जो गेम था वो उस बच्चे से बहुत दूर था, उसकी रीच से बहुत दूर था, उसकी वहाँ तक पहुँच नहीं थी कि वो अंदर जाके उस गेम को खेल सके। उसकी रीच से आउट ऑफ कंट्रोल था, आउट ऑफ रीच था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह की बात है, मैंने साहिब को देखा, वो मिल्क बूथ की तरफ, आप शहरों में देखिए एक शॉप होती है, एक बूथ बना होता है, लाइन से टैप लगे होते हैं, बहुत सारे नल लगे होते हैं, आप उसमें जितने रुपए डालोगे उतना दूध उसमें से, आप जैसे ही नल खोलोगे उतना दूध आपके बर्तन में आ जाएगा। कोई वहाँ नापने वाला नहीं है कि आपको नाप के दूध देता रहे। सिटीज़ में यही होता है, शहरों में, कि आप जो भी पैसे डालोगे, बूथ होते हैं, डेयरी सेंटर भी होते हैं, बूथ भी होते हैं, तो जितने पैसे डालोगे और उतना मिल्क आपको मिल जाएगा। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह देखा साहिब जो है दूध लेने के लिए मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, और उसके हाथ में एक बड़ा सा स्टील का कनिस्टर है। आपने कनिस्टर देखे होंगे, आपके घरों में भी होते हैं, मम्मी जो है बहुत सारी चीज़ों को उसमें रखती है, बहुत सारी दालों को, चावल को, बहुत सारी चीज़ों को। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। उसने कहा अब मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, अब मैं रैग पिकिंग का काम नहीं करता हूँ, मैं कूड़ा बीनने का काम नहीं करता हूँ, मैं काम क्या करता हूँ, मैं एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। इस रोड के किनारे, इस रोड के पास एक दुकान है और चाय की दुकान, उस चाय की दुकान पर मैं काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा कि वो जो दुकान आपको दिखाई दे रही है उस दुकान पर मैं कार्य करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और मुझे काम करने के लिए पूरे महीने में 800 रुपये मिलते हैं और पूरे महीने में यहीं पर खाना खाता हूँ, तीनों टाइम का। ऑल मील्स का मतलब है जो भी खाना मैं खाता हूँ वो मुझे दुकान से ही मिलता है। 800 रुपीज़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। आज के 800 रुपये की बात नहीं हो रही है, जब ये स्टोरी लिखी गई है बहुत साल पहले की बात हो रही है, तो उस टाइम पे 800 रुपये बहुत हुआ करते थे। दैट इज़ नॉट अ फेक स्टोरी, दैट इज़ अ रियल स्टोरी। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे काम करने के बदले में 800 रुपये और पूरा खाना मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो मैंने उससे पूछ लिया, क्या तुम्हें यह काम पसंद है, क्या तुम्हें यह काम अच्छा लग रहा है। हिज फेस आई सी, मैंने उसके चेहरे को देखा। बहुत सारे लोग चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं प्रॉब्लम क्या है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो उसका केयर फ्री लुक होता था रैग पिकिंग में, जब वो कूड़ा बीनने के लिए जाता था, अभी का जो उसका लुक आ रहा था वो वैसा लुक नहीं था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर।
स्टील का कनस्टर, उसके उस प्लास्टिक के बैग से वो जो बोरी जो प्लास्टिक की वो लादा करता था उससे बहुत ज़्यादा भारी था। स्टील का कनस्टर फुल भरा है, लिक्विड से भरा हुआ है, भारी होगा ओबियसली। और वो जो बोरी, वो जो प्लास्टिक की बोरी हुआ करती थी, प्लास्टिक बैग जो उसका हुआ करता था, नॉट मच हैवियर देन कनस्टर। कनस्टर से ज़्यादा हैवी तो था नहीं। तो उसके शोल्डर पर कनस्टर का जो बोझा था, जो प्रॉब्लम थी, वो अलग देखी जा सकती थी। द बैग वॉज हिज, बैग तो उसका खुद का था। जो वो बैग रैग पिकिंग करता था, उसके पास जो बैग रहता था वो तो खुद का होता था। द कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन ये कनस्टर तो किसी और का है। देखिए कितना डिफरेंस है खुद के काम करने में और दूसरे का काम करने में। द कनस्टर बिलोंग्स टू मैन हु ओन्स द टी शॉप, बैग उसका खुद का होता था। कनस्टर उस व्यक्ति का है जो उस चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब खुद का मालिक नहीं रहा। जिस तरह से साहिब रैग पिकिंग का काम करता था, उसको एंजॉय होता था, कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपये, कभी सिल्वर कॉइन, ये सब। और बच्चों के लिए वो एक गिफ्ट था कि कुछ नया पाना, कुछ नया मिलना। बड़ों के लिए तो सर्वाइवल था, जीवन जीने का एक रास्ता था, उनकी एक बेस था, उनकी एक आधार था। लेकिन बच्चों के लिए एक गिफ्ट था कि पता नहीं नेक्स्ट सर्च में उनको क्या मिल जाए। दैट वाज अ प्लीजिंग वर्क फॉर हिम, बट दैट वर्क, द वर्क इन द शॉप ऑफ टी इज़ नॉट प्लीजिंग फॉर हिम। ये उसके लिए आनंद करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो जो कैरियर था, प्लास्टिक का बैग, उसके लिए इतना बोझा वाला नहीं था जितना कि ये कनस्टर हुआ करता था। उसके बोझे से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखा जा सकता था। द कनस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब खुद का मालिक नहीं बचा था। अब वो डिपेंड हो चुका था किसी दूसरे के ऊपर, जो उसको महीने में यूज़ कर सकता था। 800 रुपये उसे देता था, 800 रुपीज़ एंड ऑल द मील्स, 800 रुपये, और जो भी खाना वो खाया करता था, वो सारा का सारा खाना उसके मालिक उसे दिया करते थे। अब वो खुद का मालिक नहीं रहा था, बल्कि उसका मालिक कोई और हो चुका था। दैट्स एंड ऑफ द लेक्चर टुडे। आई होप you like the lecture and you like the video also. The remaining chapter will continue in the next videos. If you have any problems, comment in the comment box, and you can come to school to discuss this topic with us also. Thank you.